Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. Any idea about last lecture? Anybody? सर नॉन होमोजीनियस वाला केस शुरू करने वाले थे। आर एच नॉन जीरो हो तब। Okay. non-zero. So, yes, I quickly go through it, what we discussed in last lecture. Then we go for the next part. Okay. So you can see here we have started the discussion about the 2.3. Okay. यस सर। Okay. So in 2.3 we start with the nth order linear differential equation, but non-homogeneous. Homogeneous means r of x equal to 0. So in this case, we already discussed about the solution. What is our solution? Yc plus yp. Okay, so yc is our complementary function and yp is our particular integration. So to find the particular integration, we have two methods: variation of parameters and undetermined coefficient for कांस्टेंट कोफिशिएंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तभी हम ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस अप टू हियर। देन वी आल्सो गो विद द लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन। यस और नो? यस सर। Okay, Yes, so sir. in to identify the linear independent and dependent, we use the Wronskian. Okay, in this case, so how we can find the Wronskian? If you have the two function y1 and y2, so Wronskian of y1 y2 will be y1x y2x y1 dash x y2 dash. This is the 2 cross 2 determinant. So you are easily know that how we can solve that. So y1 y2 dash minus y1 dash y2 dash, this is the answer of this w. Okay, now if you have the three function y1 y2 and y3, so Wronskian, that means the determinant of Wronskian will be w is equal to y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 dash y2 dash y3 dash y1 double dash y2 double dash y3 double dash, and this is the 3 cross 3 determinant, so you are easily solve this. Then how we can say that it is independent and dependent? So functions y1 y2 and y3 defined on the interval ab are said to be linearly dependent. Means y1 y2 and y3 कब linearly dependent होंगे? So if their Wronskian is 0, means अगर आप दोनों में से 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 जो भी आपको दिया है उसमें से अगर if you go with the 3 cross 3, that means y1 y2 and y3, so if the Wronskian, not a determinant, Wronskian is 0, then you can directly say that y1 y2 and y3 are linearly dependent to each other. Okay, and if you have y1 y2 and y3, and if you find the Wronskian and Wronskian not equal to 0, that means non-zero, at some point x0 belongs to ab, then you can directly say that the y1 y2 and y3 are क्या हो जाएगा? Linearly independent हो जाएंगे. Linearly. Okay, yes, linearly independent. Yes, और sir. we already discussed two examples. Yes or no? Yes, sir. यस सर। Quickly go through it and give two example to you. So you can see सर here सर cos hyperbolic x e raised to x e raised to minus x. So I, yes, बोलो. सर हम यहाँ पे ए से बी के बीच में हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डिफाइन Yes, कर रहे हैं, मतलब बोलो. डेरिवेटिव पॉसिबल है सबका, इसीलिए। हेलो। Derivative हाँ, derivative. Am I audible? यस सर। Yes, sir. Hello. अभी आई. हाँ, नहीं ओके, करने. अब डेरिवेटिव के लिए ही हम क्या है, ओके, लेकिन यहाँ पर यस, एम आई ऑडिबल क्लियरली? कट कट के आ रही है आवाज। आवाज कट हो रही है सर। ऐसा हो रहा है नाउ. Yes, यस sir. सर, नाउ क्लियर। Okay,
हाँ, यहाँ पे ए बी जो है डिफरेंशिएशन के लिए ही दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, इसमें हमने कोई इंटरवल नहीं लिया, तो जनरल ही ले लिया, देखो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू। ओके, तो यहाँ पर भी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला था, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन को नहीं दिया, मीन्स कोई इंटरवल नहीं दिया है। होल इंटरवल, होल रियल लाइन आर। ओके एवरीबडी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, बट आपको स्पेसिफिकली दिया है तो यू हैव टू मेंशन दैट। ओके, अगर आपको कोई पॉइंट दिया है और बोला है कि ये पॉइंट पे चेक करो, देन यू कैन ऑल्सो चेक इट। ओके, डन? यस सर। Okay, now here you can see that Wronskian will be cos hyperbolic x e raised to x e raised to minus x, sin hyperbolic x e raised to x minus e raised to minus x, cos hyperbolic x e raised to x e raised to minus x. If you solve these, then you will get the 0, because you can see here first and third row are same, so you can directly use the property of the determinant, then it will be 0. Now same way we also discuss example number 2, and I say that please verify this e raised to 3x मिल गया सबको e raised to 3x? Yes, sir. Yes. वेरीफाई करो, चलो नहीं मिला है तो प्लीज वेरीफाई इट। ओके, जिसको भी नहीं मिला है वो वेरीफाई करो। चलो, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि e raised to 3x इज ऑलरेडी वहां पे है ना, तो इसका आंसर आपको 1 आ जाएगा। सो ई रेस टू 3x विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि अब यहाँ पे हमने देखा कि उसका व्रॉन्स्कियन नॉन जीरो है। नाउ थिंक अबाउट दिस एग्जाम्पल 1x एंड x2। चलो इसके लिए चेक करो, व्हाट इज माई व्रॉन्स्कियन W? वेरीफाइड जीरो। 0 श्योर? Yes, sir. यस सर। ओके, क्योंकि उसमें आएगा 1x(x²). ओके, देन यहाँ पे 0 1 2x, एंड यहाँ पे 0 0 2, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये तो नहीं आया, 0 कहाँ आया? सॉरी सर, टू टू। हाँ, तो यहाँ पे देखो सर 2 नीचे वाले का जी। minus 0, that means 2, which is not equal to 0। अब not equal to 0 हुआ, that means linearly independent हो जाएगा। Independent. Understand? Everybody understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Now linearly dependent, इसमें देखो 0 2x and 5x², ये मैंने आपको इसके लिए Yes, sir. शॉर्टकट Zero. बताया था। हाँ, क्यों Zero. 0 हुआ था? फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल First एलिमेंट का element Yes, जीरो। zero है first तो फिर element zero zero. आएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने आज एक नोट ऐड कर दिया है, यू कैन सी हियर नोट, इफ एनी सेट कंटेन्स 0 एलिमेंट, ओके, देन द सेट इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, मीन्स अगर वो सेट में 0 अवेलेबल है, मीन्स 0 इज वन ऑफ द फंक्शन, एज ए फंक्शन और एज ए एलिमेंट, देन यू कैन से दैट इट इज द लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes, Yes. क्योंकि उसका व्रॉन्स्कियन ऑलवेज 0 होगा, और 0 होने से हमारी डेफिनेशन से वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, नाउ there are many methods to find the particular integrals. Here we will discuss following methods. We have only discussed two methods. Number one, methods of variation of parameters and method of undetermined coefficient. अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम पैरामीटर को वेरिएशन में डालेंगे, ओके, और यहाँ पे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में कोफिशिएंट अनडिटरमाइंड होंगे तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। So both are the different concepts. Okay, there are many methods to find this, but in our syllabus, as per our syllabus, we discuss only two things. Okay, method of variation of parameter and method of undetermined coefficient. So let's start with the variation of parameter. अब ये तो हमको पता है कि variation of parameter हम किसके लिए करेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो।
हाँ, for which type of differential equation we can apply the variation of parameter method? Non-homogeneous. No, no, no. Non-homogeneous. Only non-homogeneous. Linear. Is there any other things? No, Non-homogeneous linear differential. no. नॉट नॉन होमोजीनियस लीनियर। एक चीज आप भूल रहे हो, क्या है वो? दैट इज द Constant कांस्टेंट coefficient. कोफिशिएंट। Yes. वेरी गुड, वेरी कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को ध्यान रखना है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा देन यू कैन 5p by using the variation of parameter method. Okay, so here you can see method of variation of parameter enables to find the particular solution of any non-homogeneous differential equation with constant coefficient. 1 minute, huh, student? You can read this. Yes. Okay. Here the particular integral of the non-homogeneous linear differential equation is obtained by varying the parameters. मैंने बोला ना कि हम हरकत किस में करेंगे? पैरामीटर्स में करेंगे। ओके, क्योंकि उससे ही हमको वेरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा yp मिल जाएगा। दैट इज बाय रिप्लेसिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय वेरिएबल फंक्शन। मींस इसमें एक टेक्निक यही है कि जो 1 मिनट है, एक ही है कि by replacing the arbitrary constants in the complementary function by variable function. Means suppose if I consider the second order linear differential equation, and what is that? D square y by dx square plus p1 dy by dx plus p2 y is equal to r of x. Okay, so first we consider r of x is equal to 0. तो जैसे ही हम r of x is equal to 0 करेंगे तो हमारा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा? Homogeneous. Homogeneous. Complementary. Homogeneous. प्लीज जिसके वहां पे वो कपड़े के लिए बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, है ना? क्योंकि बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है पीछे से, है ना? सो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो वन कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जैसे ही हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ yc मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. सो yc ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a y1x प्लस b y2x। मीन्स अब तक हम क्या लिखते थे? फॉर एग्जाम्पल मेरा yc ऐसे है कि c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू 5x। ओके, सो मेरा यहाँ पे y1 ये हो जाएगा एंड y2 ये हो जाएगा। तो कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू दिस वे? ये दोनों सेम ही फॉर्म हुआ ना स्टूडेंट? Yes. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes. हाँ, सो दिस इज द y6 इज इक्वल टू a y1x प्लस b y2x। अब ये जो y1 एंड y2 जो हमने लिया है, दिस इज सेटिस्फाइड, बोथ आर दी सेटिस्फाइड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजेनियस। दैट मींस d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस p1 dy by dx प्लस p2 y इज इक्वल टू 0। जो ये y1 एंड y2 हमने लिया है वो। अब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या करेंगे? देखो, तो मुझे yp चाहिए, तो मेरे पास y1x तो है ही यहाँ पे, y2x है ही यहाँ पे। अब a एंड b की जगह पे यहाँ पे नया फॉर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, u एंड v। अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
So that's why this method is known as the variation of parameter. देखो यहाँ पे पैरामीटर हमने वेरिएशन में रखा हुआ है. ओके, गॉट इट? सर यस यस यस, बोलो बोलो. सर ये वाई सी इज इक्वल टू हमने इक्वेशन लिखी, उसके बाद आपने क्या बोला वो रिपीट करोगे? हाँ देखो, उसमें क्या होता है, ये yc तो हमको पता है, लेकिन ये yc में जो y1 एंड y2 है, हमने एक नोट स्टडी किया था. अब मैं वो भी रिपीट कर देता हूँ. हमने एक नोट किया था कि इफ y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन y1 प्लस y2 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड c1y1 प्लस c2y2 इज आल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये नोट किया था ना हमने, यस सर. है ना? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे ये yc जो है वो दोनों के एडिशन में है. ओके, अब अकेले y1 एंड y2 के बारे में सोचेंगे, दैट बोथ आर दी सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट होमोजीनियस करेगा ना. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है a एंड b, उसकी जगह पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ले रहे हैं. देखो u ऑफ x एंड v ऑफ x. अब इसमें से आप u एंड v आइडेंटिफाई करेंगे तो मैथमेटिशियन ने ऐसा बोला है कि you will get u of x is equal to minus integration r of x y2x divided by Wronskian w, and v of x will be integration r of x y1x divided by w dx हो जाएगा. अंडरस्टैंड? अब ये कैसे आएगा, उसके लिए थियरी है ना? उसमें कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, जो yp है वो yp को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. देन उसके बाद आपको डबल बार यहाँ पे देखो yp डैश करो, yp डबल डैश करो, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, देन फाइंड आउट द u ऑफ x एंड v ऑफ x. ओके, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप सीधा सपोज करेंगे तो भी चलेगा. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल शेयर दी होल प्रोसीजर. ओके, अगर आपको देखना है तो कैसे आया है तो कोई भी बुक में मिल जाएगा, रेफरेंस बुक में. अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, तो आई विल शेयर विथ यू. ओके एवरीबडी? लेकिन फिलहाल हम ऐसे याद रखेंगे u ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन एंड v ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन. ओके, अब यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ. मैं ऐसे डायरेक्ट ही yp याद रखता हूँ. सो यही फॉर्म जो हमने लिखा ऊपर कि yp इज इक्वल टू u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2, उसी को मैंने u ऑफ x v ऑफ x सब्स्टिट्यूट करके मैं याद रखता हूँ. तो यहाँ पे देखो ypx इज इक्वल टू माइनस y1x इंटीग्रेशन r ऑफ x y2x डिवाइड बाय w dx प्लस y2x इंटीग्रेशन r ऑफ x y1x डिवाइड बाय w d of x. okay, so this is your yp for the variation of parameter. अब इसमें क्या करना है, we have the r of x, yes or no? Yes sir. Yes, sir. We have the y2x, Yes sir. we have the y1x. Yes. Yes. अब w जो नहीं है उसको हम फाइंड कर देंगे. तो w क्या होता है, w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश. ओके, तो यहाँ पे आपको उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके जो भी व्रॉन्स्कियन आता है वो नॉन जीरो होना चाहिए. ऑटोमेटिकली नॉन जीरो होगा तभी हमारा सॉल्यूशन मिलेगा ये मेथड से, क्योंकि यहाँ पे देखो व्रॉन्स्कियन नीचे है डिनोमिनेटर में. तो अगर ये जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा पूरा टर्म. Yes sir. तो that becomes very complicated. okay, so ypx is equal to minus y1x integration r of x y2x divided by w dx plus y2x integration r of x y1x upon w dx. This is the yp for the variation of parameter method. So is there any doubt in this method? No, सर sir. तो लीनियर डिपेंडेंट वाला के लिए कोई सॉल्यूशन है? हाँ, यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इसीलिए होता है. तो यहाँ पे देखो मैंने बोला ना कि ये नॉन जीरो होना चाहिए. सो दैट मीन्स वी हैव द टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, है ना? इसीलिए ये Yes. होता है. ओके ओके. Yes, sir. हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो व्रॉन्स्कियन जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो फिर हमको दो सॉल्यूशन डिफरेंट नहीं मिले, ऐसा हो जाएगा ना. एक ही सॉल्यूशन होगा ना डिपेंडेंट हो जाएंगे तो. Yes, sir. हाँ, इसीलिए. डन? अंडरस्टैंड? यस सर.
ये इनडायरेक्टली Yes. इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि व्रॉन्स्कियन कब नॉन जीरो होगा, जब वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तभी होगा। नाउ गॉट इट? यस सर। ओके। Yes. अब वर्किंग रूल की बात करें तो वर्किंग रूल यहाँ पे देखो, सो यू कैन सी हियर वर्किंग रूल। मेरे वर्किंग रूल 4 ही है, यहाँ पे 5 है, तो मैं आपको मेरा वाला जो है वो आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 पे हम वाई सी फाइंड करेंगे, आप यहाँ तो रीड कर ही सकते हो, है ना। नंबर 2 पे वाई सी आ गया हमारे पास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो वाई सी में से हमको दो चीज मिलेगा, क्या मिलेगा? y1 y2। यस सर। So Yes, from sir. y1 y2 find out the w, Wronskian find out करो, and that should be not equal to 0. Okay, that is my step number 2. अब step number 3, yp जो फाइंड करना है वो पूरा आपको यहाँ पे लिख देना है। माइनस y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, r of x, देन यहाँ पे हो जाएगा y2x डिवाइड बाय w dx प्लस y2 इंटीग्रेशन r of x y1x divided by Wronskian into dx. So solve this. Okay, you can find the integration here and find out the yp, that is the step number 3. And step number 4, general solution, y is equal to yc plus yp. Understand? Yes, sir. Okay, so these are the steps for the linear differential equation of order 2. Okay, order 3 में क्या होगा, यहाँ पे एक टर्म ज्यादा बढ़ जाएगा, y3 से आएगा, वो नेक्स्ट में आपको दिखा रहा हूं मैं। ओके, और थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इससे, दिस वन इज वेरी सिंपल। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर, एनीबडी? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. Now we go for the example. Okay, so solve d square plus 1y is equal to cosec x using the method of variation of parameter. तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से करना है, तो सबसे पहले तो मेरा yp वाला फॉर्म फिक्स हो गया, पता चल गया। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो yc के लिए हमने 3 स्टेप किए थे, अगर आपको याद है तो। yc के लिए फर्स्ट स्टेप क्या किया था, रीराइट वाला किया था। Yes, Yes, sir. D form में. उस Yeah, we convert. रीराइट, ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड उसके बाद सीधा yc लिखते थे अकॉर्डिंग टू अवर केस। Yes. ओके, Yes. अब वही चीज यहाँ पे yc के लिए हम फॉलो करेंगे। तो मैंने बोला था ना कि yc तो आपको हर एक एग्जांपल में फाइंड करना ही है, बोला था कि नहीं मैंने? Yes. यस सर। यहाँ Yes. यहाँ पे हमारा जो गिवन स्टेटमेंट में उसमें रीराइट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्टेप स्किप हो गया, सीधा हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू प्लस और माइनस i। यस सर। Yes, sir. ओके, तो m इज इक्वल टू प्लस और माइनस i को हम अल्फा प्लस और माइनस i बीटा के साथ कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज माय अल्फा? Zero. 0, एंड Zero. बीटा Plus minus I. नो नो, वन दैट वन वन। 1 है ना, One, one. 1, क्योंकि i तो ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस एंड माइनस i यहाँ पे है, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जो उसके साथ है 1 उसी को लेना है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको याद हो तो उस टाइम पे हमारा yc हो जाता था e रेज़ टू अल्फा अल्फा एक्स एक्स c1 बीटा cos प्लस साइन बीटा बीटा। x c2 sin बीटा x। ओके, तो यहाँ पे वही होगा, लेकिन e रेज़ टू अल्फा मीन्स e रेज़ टू 0, दैट मीन्स 1। यहाँ पे हो जाएगा c1 cos बीटा मीन्स 1, सो x प्लस c2 sin x। ओके, Yes, sir. यस सर। so is there any doubt in step number 1, anybody? No, sir. No, sir. Okay, now step number 2, identify पहले y1 and y2। so y1 क्या हो गया मेरा, कॉस एक्स Cos x. cos x, and y2 साइन Sin एक्स। x. sin। Sin X. ओके, सो y1 एंड y2 मेरे पास है, तो मैं व्रॉन्स्कियन इजीली फाइंड कर सकता हूँ। यस
किसका बैकग्राउंड, यस थैंक यू शिव, ओके। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, नाउ वी कैन फाइंड द व्रॉन्स्कियन। सो डब्ल्यू की डेफिनेशन क्या है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। सो y1 हो जाएगा मेरा cos x, y2 हो जाएगा sin x, y1 डैश cos x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस sin x, एंड sin x का हो जाएगा cos x। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस देन यू हैव cos square x plus sin square x, and that will be 1, and 1 which is not equal to 0, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So my Yes, sir. step number 2 is completed. Now we go for the yp. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा by variation of parameter method. Okay, variation of parameter method या फिर by method of variation of parameter, ऐसा भी आप लिख सकते हो। सो ypx मेरा क्या हो जाएगा, u ऑफ x इंटू वाई वन एक्स प्लस वी ऑफ एक्स इंटू वाई टू एक्स। अब यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल में सेपरेट करके दिया है, तो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, लेकिन मैं क्या करता हूँ सीधा इसी में सब्सटीट्यूट करके पूरा सॉल्व कर देता हूँ, है ना, वो भी चलेगा ना, दोनों सेम ही Yes. है ना। ओके, अब यहाँ पे Yes, sir. गलती हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया है ना, वो भी लिख R सकते, आर ऑफ एक्स ही है ना, वो उसका आर ऑफ एक्स ही होगा। सो यहाँ पे आर ऑफ एक्स डिवाइड बाई डबल ई, तो यहाँ पे देखो y2, व्हाट इज माय y2 हियर, sin x। Yes. अब आर ऑफ एक्स क्या Yes. है, Cosec x. cosec x। ओके, सो Cosec. cosec x, तो sin x इंटू cosec x करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यस। सो ये 1 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लेकिन आगे माइनस है ही ऑलरेडी। सो एनी डाउट? No, sir. No, sir. I want confirmation from all the students. Please confirm yourself. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, thank you. V of x की फॉर्मूला इंटीग्रेशन y1 f, यहाँ पे r of x, ओके, डिवाइड बाय w dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू cosec x dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये मेरा y1 जो था वो cos x है, r of x है, cosec x है, व्रॉन्स्कियन 1 है, तो यहाँ पे देखो cos x इंटू cosec x करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा cot x, और cot x का हमको पता है द इंटीग्रेशन विल बी log sin, यस log sin x। ये दोनों वैल्यू आप yp में सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर yp इज इक्वल टू माइनस x, y1 की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना था हमको, cos x प्लस v of x मीन्स log sin x, so log sin x into y2 is my sin x, so this is your yp. Now step number 4, the general solution is y is equal to yc plus yp, so yc plus yp करेंगे तो yc ये मेरा था c1 cos x plus c2 sin x, yp मेरा जो मिला है वो यहाँ पे रिप्लेस करूंगा माइनस x cos x plus sin x log sin x, okay, where c1 and c2 are arbitrary constant. So is there any doubt, any question in this example, anybody? Sir. Yes, yes, बोलो सर बोलो, एक और आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा क्यों? इंटीग्रेशन yp हाँ? के? दो बार इंटीग्रेशन किए तो फिर हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी लगाया है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन में सी आएगा, यस लेकिन Yes, sir. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, हमने क्या बोला था जनरल सॉल्यूशन में फर्स्ट यूनिट में, कि इफ यू हैव द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 देन हाउ मेनी आर्बिटरी, हाँ आर्बिटरी कांस्टेंट्स आर देयर, 2 है ना, Two. 2, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो डेफिनेशन गड़बड़ी वाली हो जाएगी, है ना, एंड योर सॉल्यूशन इज नॉट ट्रू, सो यू कैन नॉट अप्लाई और यू कैन नॉट ऐड कांस्टेंट एनीवेयर, ओके। सर पर आना तो चाहिए ना, इंटीग्रेशन कर रहे तो। अब देखो यहाँ पे आपने बोला कि आना चाहिए, चलो यहाँ पे हमने लगा भी दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस सी करेंगे, यहाँ पे प्लस सी करेंगे, है ना, तो यहाँ पे जो आपका yp है उसमें यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर। अब Yes, मीन्स sir. दोनों को क्लब करके, अब ये yp का नेम क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कभी कांस्टेंट होगा नो सर। नहीं No, होगा, sir.
है ना। और वो जो आप कांस्टेंट की बात कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली u एंड v जब फाइंड करते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। डन, गॉट इट। तो रीजन क्या है सर दोनों के इंटीग्रेशन के कांस्टेंट सेम आने का? सेम आने का मीन्स मतलब कैंसिल हो जाते हैं सेम ना, नहीं आया तो बे, दोनों को मिक्स करके न्यू आएगा, उसको सी बोल दिया है सर ने। हाँ वो सी हो गया है ना। और सी ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आप जिसे ही वो वाईपी वाला फॉर्म मैंने बोला था, डेरिवेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव में ही वो जीरो हो जाएगा, यस सर। है ना। तो उसका रोल ज्यादा नहीं होता है वहां पे, ओके सर। अंडरस्टैंड। इसीलिए उसका कुछ इम्पोर्टेंस पीआई के लिए मीन्स वाईपी के लिए वो कोई रोल वहां पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको वहां पे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर लिखें तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में हो जाएगा। और हम वी आर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो वी कैन नॉट अप्लाई द प्लस सी हियर। ओके एवरीबॉडी, यस यस सर। है ना। तो इसीलिए यस यहाँ सर। पे प्लस सी मत कर देना। ओके ओके। अब इसमें से एमसीक्यू भी कभी कभी निकलता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में कांस्टेंट होता है कि नहीं, उस टाइप का, है ना। तो पर्टिकुलर यस सर, इंटीग्रल वो में पता है। कभी भी कांस्टेंट हाँ दिखाई नहीं देगा, है ना। ओके यस सर। ओके। नाउ इज यस देयर सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, नो सर। एनीबडी? ओके, व्हाट सर अबाउट एक और करवा दीजिए ना। सॉरी, क्या करो? एक एक और एग्जांपल ऐसा करवाइए ना ऐसा। हाँ हाँ, वो तो करना ही हमको, 3-4 एग्जाम्पल करना है। लेकिन ये तो थियरी में था, वो हमने डिस्कस किया, है ना। वी हैव 4 to 5 एग्जाम्पल। ओके ओके। हाँ, Yes. वर्क, यस। नेक्स्ट वी गो फॉर द ऑर्डर 3। मैंने अभी बोला कि ये कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन वी कैन डिस्कस हियर। ओके, सो working rule to solve the linear differential equation of order 3. So the differential equation is of the form y triple dash plus p1 y double dash plus p2 y dash plus p3 x y is equal to r of x। ये सॉरी, ये गलती से x आ गया, ये कांस्टेंट होगा ना। यस। ओके, सो यहाँ पे इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो ये अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, तो वी हैव 3 टर्म। Yes, sir. ओके, अब 3 टर्म में से मुझे 3 फंक्शंस मिलेंगे, y1 y2 एंड y3। यस और नो? यस सर। यस सर। और ये तीनों के साथ अगर मैं क्लब करूं ux vx एंड tx को, तो मेरे पास ऐसे yp होगा, yp इज इक्वल टू u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2 प्लस t ऑफ x इंटू y3, वेर u v एंड t आर अननोन फंक्शंस ऑफ x। यस और नो? यस Yes, sir. अब जो u ऑफ एक्स से v ऑफ एक्स एंड t ऑफ एक्स, इसमें क्या है कि बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसलिए सेपरेटली फाइंड करना ही अच्छा रहेगा। तो u ऑफ एक्स जो है वो इस हिसाब से मिलता है, इंटीग्रेशन w1 इंटू आर ऑफ एक्स डिवाइड बाई w dx। v ऑफ एक्स इज इक्वल टू w इंटीग्रेशन w2 r ऑफ एक्स डिवाइड बाई व्रॉन्स्कियन dx एंड t ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन w3 r ऑफ एक्स डिवाइड बाई व्रॉन्स्कियन इंटू dx। अब w1 मीन्स क्या है, तो यहाँ पे देखो w1 मीन्स y2 y3 y2 डैश y3 डैश, ऐसे आपको लेना है। ओके, मीन्स y1 का रोल वहां पे नहीं है, उसके साथ देखो y2 y3 के साथ है। अब जब आप v ऑफ x फाइंड करें तब y2 नहीं होगा, तो y1 y3 y1 डैश y3 डैश। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा ऑर्डर करके लिखा है, देखो मीन्स ये जो है एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है, इस हिसाब से y1 y1 डैश। ओके, अब इसका सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस वन, y3 y1 डैश माइनस y3 डैश y1। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। एंड w3 इज y1 y2 y1 डैश y2 डैश, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द थर्ड वेरिएबल, सो t ऑफ x के लिए तो y3 ऑलरेडी है, तो उसका रोल उसमें नहीं दिखना चाहिए। दैट मीन्स y1 y2 y1 डैश y2 डैश y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। एंड व्रॉन्स्कियन तो हम जानते ही हैं, y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश नॉट इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है यहाँ पे एक्सप्रेशंस वो फाइंड करेंगे, और इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको u v एंड t मिलेगा,
और वो u v and t को हम ये yp में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट अवर yp, and from yc and yp we can find the general solution y is equal to yc plus yp. Understand everybody? सर ये Yes, डब्ल्यू sir. डब्ल्यू यस सर। टू एंड W3 ये आगे पीछे हो जाए तो चलेगा उसके टर्म? उसकी टर्म आगे पीछे करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। ऐसा नहीं सर, वो जो डिटर्मिनेंट है वो W3 का W1 में अगर रख के तो नहीं 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 चलेगा। वही तो मैंने बोला कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप y1 के साथ डील कर रहे हो, है ना, y1 के आगे कोफिशिएंट जो उसके साथ, तो उसमें y1 नहीं आना चाहिए। अगर आपने W3 वाला उसमें डाल दिया तो इट विल वेरी डिफिकल्ट, ओके, ओके सर। और रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि y1 है तो उसका W में कोई रोल नहीं है, ओके, y2 है तो W2 में उसका कोई रोल नहीं है, y3 है तो उसका W3 में कोई रोल नहीं है, ओके, और जो W1 है उसके साथ आप जो लेंगे, है ना, दैट इज योर u ऑफ x, है ना, अंडरस्टैंड? यस सर, यस। ओके, अगर आप इस हिसाब से नहीं याद रखना चाहते हो तो आप सीधा ऐसे भी याद रख सकते हो। सीधा यहाँ पे देखो y2 y3 डैश माइनस y2 डैश y3 इंटू r ऑफ x डिवाइड बाय W, वो भी कर सकते हो आप, कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर, यस। यस ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो नाउ वी गो फॉर दी सेकंड एग्जांपल 3x3 के लिए। यू यस, कैन यस। you can see here, solve d cube y by dx cube plus dy by dx is equal to cosec x using the method of variation of parameter। तो अगेन यहाँ पे इसको d में ले जाओ, y से निकालो, क्या होगा, d क्यूब प्लस 1, है ना, यहाँ पे 1 नहीं होगा, d होगा, यस, d क्यूब प्लस डी d होगा। y इज इक्वल टू cosec x, और उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा हमारा, m क्यूब प्लस m इज इक्वल टू 0, उसमें से m कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 0 i and माइनस i, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा देखो, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज yc इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, सो c1 e रेज टू 0, सो E raised c1 to 0. दैट मीन्स 1, सो c1 प्लस c2, यहाँ पे अल्फा 0 है ना, एंड बीटा 1 है, तो यस c2 cos x बीटा प्लस 3 sin x, ओके, यस Yes. और नो? यस सर। ओके, अब यहाँ से मुझे y1 y2 एंड y3 निकाल के दो। y1 क्या हो जाएगा, c1 के साथ जो 1. है वो 1, y2 cos x, Cos x. y3 sin x, Sin x. साइन है एंड r ऑफ x इसके साथ ही हम लिख देंगे कोसेक cos Sec x, x. ओके। अब यहाँ पे देखो, जो स्टेप नंबर 2 था वहां पे क्या था, व्रॉन्स्कियन था, है ना, तो यहाँ पर भी हम Yes. व्रॉन्स्कियन ही फाइंड करेंगे, लेकिन उसके साथ ये तीनों बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चलो वेरीफाई करो तो ये सही है कि नहीं? Yes, sir. सही है. यस सर। सही है, एवरीबॉडी Yes. गॉट इट? यस सर। ओके, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं W1। अब W1 में क्या करना था मुझे, y2 y3 y2 डैश y3 डैश, तो यहाँ ये व्रॉन्स्कियन अगर आपने फाइंड किया है ना तो इजीली दिखेगा, देखो ये यही है, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन प्लस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 1. एक्स 1 आ गया। अब W2 दैट मीन्स y1 y3 y1 डैश y3 डैश, तो फर्स्ट एंड थर्ड रो में फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में फर्स्ट 2 रो देखो, 1 इंटू कॉस एक्स, सो कॉस एक्स, है ना, यहाँ पे माइनस 0, लेकिन मैंने बोला था कि ऑर्डर हमको चेंज करना है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके दिया है। एक्चुअली क्या है, पहली हमारी कॉलम y3 डैश y1 डैश, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, अंडरस्टैंड या? सर ये W1 Yes, W2 sir. W3 डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर्स ही है. हाँ हाँ, माइनस नहीं, डायगोनल के कहा माइनस है, हाँ सर. नहीं है माइनस, फर्स्ट नहीं माइनस करना पड़ेगा उसको फर्स्ट अच्छा नहीं. फर्स्ट 2 रो ही है यहाँ पे, है ना, हाँ, पिक्चर में, yes, sir. ये थर्ड रो तो है ही नहीं,
है ना, तो वो माइनर नहीं होंगे डायगोनल के। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो यस सर। यहाँ पे W3 अगर आप फाइंड करेंगे तो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो फर्स्ट टू कॉलम में फर्स्ट टू रो ऑब्जर्व करो, तो माइनस साइन एक्स माइनस जीरो, सो माइनस साइन एक्स आ गया। ओके, यस सर। अब यू ऑफ एक्स की फॉर्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W1 मेरा है 1, आर ऑफ एक्स है कॉस एक्स, W है मेरा 1, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अंडरस्टैंड? यस। यस v ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा W2 है, देखो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, ये माइनस मत छोड़ना है ना, यहाँ पे छूट नहीं जाना चाहिए, कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये ऑर्डर जो है इसका आपको पॉजिटिव कॉस एक्स मिलेगा, लेकिन मैंने बोला कि इसकी फॉर्मूला ये है ना, उल्टा करना है आपको। गॉट इट? यस सर। है ना, Yes. यहाँ पे यस माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे कॉसेक एक्स डिवाइड बाय 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स करेंगे तो कॉट एक्स होगा, सो माइनस कॉट एक्स है, तो माइनस लॉग साइन एक्स उसका इंटीग्रेशन होगा। ओके एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब टी ऑफ एक्स अगर आप फाइंड करेंगे तो W3 है, तो W3 की जगह पे मुझे मिला है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, आर ऑफ एक्स है मेरा कॉसेक एक्स, और यहाँ पे W1 है एंड डी एक्स, तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो -1 ही बचेगा, Minus x. तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू हियर, एनीबॉडी? नो सर। No, sir. ओके, नो सर। नो सर। now substitute these values in our yp. Okay, so yp is equal to क्या है, u of x into y1 plus v of x into y2 plus t of x into y3. So if you substitute in this form, so our yp will be, yp is equal to log cosec x minus cot x minus cosec x into, sorry, cos x into log sin x minus x into sin x. So this is our yp. Now what is our next step? The general solution. So hence the general solution is y of x is equal to yc plus yp. So यहाँ पे yc replace कर दो, यहाँ पे yp replace कर दो, where c1 c2 and c3 are arbitrary constants. So is there any doubt, any question in this example? नो नो सर। सर। No, sir. नो सर। Anyone? Any problem? So हमने जो वो ब्रॉन्स्कियन माइनस लिया वो सभी में एकदम ऐसा माइनस ही लेने का ना? नहीं नहीं नहीं, सभी में नहीं, ये W2 है ना, देखो ये मेरा ऑर्डर है y1 y2 y3, तो W1 में मैंने किसको कंसीडर किया, y2 y3 को, Yes. W2 में किसको किया, मुझे करना चाहिए तो y3 y1, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले इस तरीके से लिखा है, राइट ये है ना, ऑर्डर अगर ब्रेक नहीं Yes. करना है तो y2 y3, उसके बाद y3 y1, उसके बाद y1 y2। अंडरस्टैंड? Yes. Yes. है ना, इसीलिए यहाँ अगर आप इसी हिसाब से लेते हो तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन इफ यू गो विद दिस देन यू हैव टू माइनस साइन देयर। Okay. ओके, Yeah. डन? ओके, एनीबॉडी? नो सर। नो सर। ओके, देन वी गो फॉर अवर एग्जाम्पल। चलो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल करने के बाद स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व दिस वन। ओके, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, रीराइट करने की जरूरत है यहाँ पे, नो सर। सो सीधा क्या ऑक्सिलरी आएगा, एक्शन। यस द auxiliary equation is m square minus 2m equal to 0. So m will be outside, so m minus 2 equal to 0. Therefore we have m is equal to 0 and m is equal to 2. अब ये है, so yc is equal to, सीधा yc क्या मिलेगा, c1 C1 plus C2 e raised to 0x 2x. c2 e raised to 2x. So we have c1 plus c2 e raised to 2x. So our step number 1 is completed. Now we go for the step number 2.
स्टेप नंबर Vronsky. के लिए पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हियर या फिर कंसीडर, ओके सॉरी, कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर यहाँ पे y1 y2 है, y1 and y2. कंसीडर y1 ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा मुझे 1 One. एंड y One. 1 x इज इक्वल टू e e रेस raised to E raised 2x e raised to 2x. एंड यहाँ पे r of x यस r हियर of x e raised to x. r of x इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू साइन x, ओके, ये मेरा r ऑफ x है। तो ये तीन चीज भूलना मत। अब नेक्स्ट में क्या करना है, व्रॉन्स्कियन, Yes, sir. yes W is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash, ओके, इक्वल टू y1 क्या है मेरा 1, यहाँ पे e रेस टू 2x, 1 का 0, 2 e रेस टू 2x, okay, now if you find this then you will get 2 into e raised to 2x which is not equal to 0, okay. Yes. Yes, sir. Okay, that means we have the Vronsky not equal to 0. अब Vronsky not equal to 0 हुआ, तो now we go for the YP, yes or no? Yes. Yes, sir. yes sir So by, U of X. yes, by method of undetermined कहाँ याद आ गई, variation of parameter, okay, method of variation of parameter, variation of parameter, we have yp इज इक्वल टू, मैं सीधा लिखता हूँ, ओके, फर्स्ट मेरा y1 आएगा, इंटीग्रेशन r ऑफ x इंटू y1 यहाँ पे है तो यहाँ पे y2, यहाँ पे व्रॉन्स्कियन dx प्लस y2 इंटीग्रेशन r ऑफ x तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे w d ऑफ x, ये y1 एंड y2 में लिखा है वो एक्चुअली y1x एंड y2x है ना, अंडरस्टैंड, Yes, yes sir. है ना यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट देयरफॉर yp इक्वल टू माइनस y1 क्या था मेरा 1, Yes, sir. ओके, r ऑफ yes x sir e रेज़ टू x sin Sin x, Sin. y2 e रेज़ टू 2x, 2 e raised to 2x. नो, E ये raised तो to 2x. व्रॉन्स्कियन 2 e रेज़ Yes. टू, है ना, प्लस y2x, चलो y2x है मेरा e रेज़ टू 2x, r ऑफ x है मेरा e रेज़ टू x sin x एंड y1x अगेन 1 है तो एज इट इज 1. यहाँ पे e रेज़ टू 2x, 2 e रेज़ टू 2x into dx. So is there any doubt up to here, anybody? No, sir. नो सर। अब इसको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बस खत्म बात, yp मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू 2x ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे e रेज़ टू Yes, 2x sir. में से एक पावर कम हो जाएगा, है ना, e रेज़ टू 2x Yes. माइनस x होगा ना, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट Yes. इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे सो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे e रेज़ टू x इंटू साइन x dx आएगा। अब यहाँ पे e रेज़ टू 2x एज इट इज, यहाँ पे आपको मिलेगा बाई 2 बाहर ले लिया, e रेज़ टू माइनस x इंटू साइन x इंटू dx, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. yes अब आपको 12th में ये फॉर्मूला आया था कि नहीं मुझे नहीं पता Yes, है, sir. लेकिन इफ आया था Yes. Yes. आया था ना, You will. if you You will. observe, yes, if you observe here, so e raised to x has the finite number of differentiation and integration and sin x has also the same way, means वो कंटिन्यू चलता जाएगा ना, आप साइन Yes. का डिफरेंशिएशन Yes. तो कॉस आएगा, कॉस से फिर माइनस साइन, लेकिन वो वेनिश नहीं होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, e raised to E raised ax to into AX. sin bx BX. dx, ओके, क्या था वो, सो e E raised to, raised to AX upon A square plus B square वेरी गुड, into A sin BX minus B cos BX. वेरी गुड, b cos bx, वेरी गुड, ओके, सो यही आपको सिर्फ a एंड b की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे लिखना है। तो व्हाट इज माय a एंड b फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, 1 1. 1 and 1, everybody understand? one
है ना। तो यहाँ पे e रेज टू एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। सो फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे e रेज टू 2x अपॉन 2। नाउ व्हाट इज माय a and b for second integration? -1 1 -1 and -1 1. 1 So e raised to minus x upon -1 square. So पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, माइनस साइन एक्स होगा, यहाँ पे माइनस b मीन्स 1 है, सो cos x हो जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। इज देयर एनी डाउट एनीबडी? नो सर। नो No, सर sir. ओके, सो टोटल यहाँ पे देखो -1/4 हो गया। यहाँ पे इसको ओपन करो, सो e रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे प्लस अगेन यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ओके, अब यहाँ पे देखो e रेज टू 2x इंटू e रेज टू माइनस एक्स, कितना बचेगा? e raised to x e रेज टू एक्स ही बचेगा ना। तो e रेज टू एक्स यहाँ पे मैंने इसके Yes. साथ ले लिया, और यहाँ पर भी इसके साथ e रेज टू एक्स ले लिया, cos x हो जाएगा। ओके, अब विच टर्म विल बी कैंसल आउट? कोई बताएगा मुझे कौन सी टर्म कैंसिल होगा? चलो नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी क्विक आंसर यहाँ पे नहीं मिला तो मुझे एक स्टेप ज्यादा e करना raised to x पड़ेगा। cos x वाला यस E यस, raised to x cos x. कर देते हैं। चलो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/4 e रेज टू एक्स कॉस एक्स माइनस 1/4 e रेज टू एक्स साइन एक्स minus 1/4 e raised to x cos x. So if you observe here, so this term will be cancel out, है ना। so हमारे पास यहाँ मिला हमको -1/4 -1/4, so -2/4, लेकिन एक्चुअली होगा -1/2 e raised to x sin x, 2 कैंसिल हो गया। yes or no? यस। Yes. ओके, अब मेरे पास yp आ गया, तो मुझे सिर्फ क्या बचा नेक्स्ट स्टेप? एडिशन y इक्वल टू General yc प्लस YP YP plus plus YP. YP. The general solution is y is equal to yc General solution. plus yp. So y is equal to yc. yc क्या था मेरा, किसी को याद है? c1 plus c1 plus C1 c2 plus e raised to 2 E raised to 2x. यस। plus c2 e raised to 2x, and yp मुझे मिला है -1/2 e raised to x sin x. Okay, where ये मत भूलना c1 and c2 are arbitrary constant arbitrary Arbitrary constants. Okay, so is there any doubt, any question in this example? Anybody? सर No, sir. Yes, yes, बोलो। सर इसे वो वाली मेथड से कर सकते हैं, वो w1/w into rx वाली W1 into W2 उसमें अरे सर हाँ हाँ, वही तो है। W1 यहाँ पे Y2 हो गया, क्योंकि ये 3x3 नहीं है ना। हाँ, ये 3 ऑर्डर का नहीं है, 2 ऑर्डर का है। ओके यस सर ओके, तो W1 आपका यहाँ ऑटोमेटिकली Y2 है, एंड W2 जो है वो आपका Y1 है। ओके यस सर ओके, सो इज देयर एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so No, sir. is there any problem in today's session? Anyone? No, sir. I want confirmation from all the students. Please confirm yourself. नो सर। No sir. नो सर। No बस? sir. ओके, इतने ही लोग थे लेक्चर में। चलो सब लोग कंफर्मेशन Yes. दो जल्दी। यस नो सर। डाउट सर नो सर। नो सर। No sir. ओके, नो सर। थैंक यू। No, sir.